साथियों नमस्कार। DD16 लाफ्टर एंड लाइफस्टाइल क्लब के रोज नई नई एक्टिविटीज हो रही हैं। ऑनलाइन हास्य डेली 8:05 पे होता है। आज हम पेश कर रहे हैं एक टॉक शो, और उस टॉक शो में आ रहे हैं डॉक्टर उमेश सहगल, जो दिल्ली के अंदर लाफ्टर योगा के कंसेप्ट की बुनियाद रखने वाले हैं। बॉम्बे में डॉक्टर मदन कटारिया जी से मिलकर उनको इतनी प्रेरणा मिली कि उन्होंने दिल्ली में लगभग 2002 में, आज से 18 साल पहले, इसकी नींव रखी, जो आज इतनी फूल रही है कि कम से कम 50 जगह पे रोजाना लाफ्टर योगा होता है, और बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस भी इसको अपना रहे हैं। तो सीधा मिलते हैं डॉक्टर उमेश सहगल जी से। जी Very nice. Good Very morning. nice. Good morning, ji. Good morning. It is very well that you came in our studio to have a lot of discussion about the future of laughter, as you are known as Laughter King in Delhi NCR. Thank you. Thank you. Thank you. We are welcoming to you in this platform and with a great feelings of love, laughter, happiness. I want to ask some questions from you. Can I? Sure. Anytime. Any question. But not about your marriage, mind you. So, sir, Anji. how you are feeling in this laughter journey? You bring this laughter concept in Delhi in 2002, and you have Yes. put lot of efforts to uh, to uh, to take us in this good shape of in Delhi NCR. Yes. Credit to you. So, how you are feeling after in Delhi NCR? You see, when I joined one of the classes in Mumbai, that's my elder brother, Mr. O.P. Sehgal. He is a friend of Dr. Madan Kataria. When I attended a class over there just for 20 minutes, I just didn't know what is happening. But there was some change in my mind during that 20 minutes. Okay. People were laughing. Why they were laughing? I saw them laughing. I saw them doing exercise. I saw them doing, all sort of actions, with laughter. So, but after 20 minutes, I found some change in me. And I thought, okay, why should not I bring that change to other people also? So that was my main aim. In 2002, I started with one class in Derawal Nagar, just with 5 people. Okay. They were doing the yoga exercise, and I told 5 minutes I took, and they all liked it. And then next day they said, you do it for 10 minutes. And then after that, after 15 days, they said, now you do it for half an hour. So they reduced their own time and then started doing laughter yoga along with me. So that's how this journey started, from Derawal Nagar, 5 people. After 1 month, there were 15 people. Then people kept on joining, like you see a train, it keeps on moving it here and there. And they started laughing, they liked the concept. And that's how I went on to Gujranwala town, then to Model town, then to Shalimar Bagh, then to Saraswati Vihar, then to Rohini, and then to Mr. Durgadas place, Rajwari Garden. When you reach Rohini? Rohini I reached in 2003. 2003. Okay. 2002 we started in Model. 2003 में हमने 5 क्लासेस खोली थी उस वक्त. Very good, sir. I was thinking. Derawal Nagar. Okay. Okay. So रोहनी में आप सबसे पहले किसको मिले? सबसे पहले हम खड़े हुए थे वहां पे सड़क पर.
अपने बैनर लगा के हमारे साथ में मिस्टर सुरेश गुप्ता, मिस्टर रमेश गुप्ता एंड पम्मी जी, ये हमारे Okay. साथ थे। तो हम बैनर Okay. बांट रहे थे वहां पे सबको। वो बैनर बांटते हुए सबसे Okay. पहले सेठी साहब मिले, फिर नीलम जी मिली, Okay. फिर कुछ और लोग भी मिले साथ में, जो मेरे मिस्टर शर्मा हैं वो मिले थे। तो उनको हमने बताया पैम्फलेट बांटते हुए, और हमारा बैनर लगा हुआ था। मिस्टर सुरेश गुप्ता अपनी कार में ले गए थे, तो बैनर बड़ा लगाया हुआ था, उनकी इनोवा गाड़ी थी। इनवाइट किया कि आप आइएगा। तो नेक्स्ट डे फिर हम लोग गए थे उनके पार्क में, और तब से फिर स्टार्ट हो गया। तो नीलम जी, सेठी साहब, ये तो हमारे साथ फाउंडर रहे हैं ना शुरू से ही, और उसके साथ ही, और फिर धीरे धीरे करके वहां पे अनु सानी वो मिल गई हमें, वो ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो इस तरह हमारा कारवां बढ़ता गया। लेकिन हमारे साथ जो चलने वाले थे वो मिस्टर सुरेंद्र सिंह पम्मी, वो मेरे साथ रहे हमेशा हर जगह। और मिस्टर रमेश चड्डा थे, मिस्टर रमेश गुप्ता, सॉरी, मिस्टर रमेश गुप्ता, वो फिर बाद में शिफ्ट कर लिया उन्होंने अशोक विहार। तो अदरवाइज वो भी मेरे साथ जाया करते थे। और मिस्टर सुरेश गुप्ता जो हमारे RWA के प्रेसिडेंट थे दिलावाल नगर में, वो बहुत मिस्टर जी जी जी। तो हमारे साथ फिर थे मिस्टर जितिन कोही, एक वो एक्चुअली जितिन गुप्ता Yes, है, yes. लेकिन वो क्योंकि राइटर होने की वजह से वो अपने आप को कोही लिखते थे। वो हमारे साथ जो है, उन्होंने काफी काम किया हमारे साथ। 2004 2005 की बात है, नहीं 2006 में हमने एक कॉन्फ्रेंस करी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिसका नाम था लाफ्टर द स्ट्रेस ब्रेकर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक गांधी भवन है, Okay. उसके अंदर हमने कॉन्फ्रेंस करी थी फुल डे की, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। Okay, very good. बाकायदा उसमें ब्रेकफास्ट दिया गया सुबह। उसके बाद उस बुलाए हुए थे हमने डॉक्टर चोपड़ा और डॉक्टर कटपालिया जो डायबिटोलॉजिस्ट है, उनको बुलाया था हमने। उनके लेक्चर थे 15-15 मिनट के। फिर उसके बाद खाना था। फिर मिस्टर जितेन कोही के साथ मिलकर हमने काफी सेशन किए। हम लोग फार्म हाउस में भी जाया करते थे। हम लोग अलीपुर में 2 फार्म हाउसेज में हमने किए थे प्रोग्राम। देन आज तक लाइव, आज तक किया था प्रोग्राम हमने उनके साथ मिलके। सो इस तरह से हमारा कारवां चलता चला गया। डॉक्टर मदन कटारिया आए थे 2005 में गुजरावाला टाउन, पहली बार आए थे वहाँ। सो उन्होंने, हाँ, तो उन्होंने काफी लाइक किया उन्होंने ये चीज। तो धीरे धीरे करके, क्योंकि मेरी डायरेक्ट उनके साथ जान पहचान नहीं थी, मेरे कजन ब्रदर जो हैं मिस्टर ओपी चोपड़ा, जिनका मैंने अटेंड किया था क्लास, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया डॉक्टर मदन कटारिया को। डॉक्टर मदन कटारिया आए यहाँ पर कि इतने थोड़े टाइम के अंदर ही हमने इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर दी। तो वो मेरे अकेले बस की बात नहीं थी, हमारे साथ जुड़े हुए थे सारे। और धीरे धीरे करके ये जो जेंटलमैन मेरे सामने बैठे हैं मिस्टर दुर्गादास, ये धीरे धीरे करके जुड़ गए मेरे साथ आके। बापू सर बहुत लेट आया आपके, उससे पहले काफी लोग थे आपके साथ। राजीव नारायण था, देन देवेंद्र गुप्ता था जी, देन और काफी लोग थे। जब मैंने फील कर रहा हूँ आप, मतलब मैं कि पूरी किस तरह से आपने एक बॉम्बे की एक क्लास से मोटिवेशन लेके और वो जज्बा लेके दिल्ली में लाफ्टर योगा का बीज बोया, और उसकी कितनी शाखाएं इस टाइम पूरी दिल्ली में फैली हुई है। इट इज रियली मार्वलस। मतलब मुझे लगता है उससे पहले दिल्ली में लाफ्टर क्लब का कंसेप्ट ही नहीं था। तो नहीं था, बिल्कुल नहीं आप था। उसको जन्म देने वाले हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इस पूरे इस चीज को मैं आपसे सुन रहा हूँ, और इससे बहुत ऊर्जा मेरे अंदर पैदा हो रही है कि देखिए कैसे एक पैशन किस तरह से कितना बड़ा रूप ले सकता है। तो अब कंटिन्यू करिए आप बातचीत। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। मैं बहुत लेट इसमें एंटर हुआ हूँ, पर अभी हम लोग इसको आफ्टर मिशन भी स्टार्ट किया दिल्ली NCR में, जिसमें नोएडा वाले, गुड़गांव वाले, दिल्ली वाले भी खुले। हमने एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी डॉक्टर के अग्रवाल के साथ एक प्रोग्राम किया जो बड़ा इफेक्टिव रहा। व्हाट इज योर फ्यूचर प्लानिंग कि हम इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं? ऐसा है दुर्गादास जी, प्लानिंग तो बहुत है मेरे दिमाग में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अभी प्रोफेशन से रिटायर नहीं हुआ हूँ। मेरा अपना प्रोफेशन है जो मेरे को प्रॉब्लम देता है थोड़ा सा। अदरवाइज जैसे गुड़गांव में है हम,
गुड़गांव के अंदर हमने 5-6 क्लासेस शुरू कर दी हुई हैं, और हमारा आर्टेमिस हॉस्पिटल के साथ हमारा एक टाई अप हो गया है कि जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो कहते हैं कि वहां पे करिए आप, फ्री ऑडिटोरियम, एवरीथिंग विल बी फ्री, और वो प्रोवाइड करते हैं, साथ में चाय नाश्ता भी प्रोवाइड कर देते हैं। सो मेरा एम ये है कि हम धीरे धीरे करके इसको आगे फैलाएं। गुड़गांव में भी मेरे साथ 2-3 लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे साथी हैं। मिस्टर हमारे लो, देखिए इतने अच्छे लोगों के नाम भूल जाते हैं, खाली एक मेरे साथ मिस्टर राजदान है, और ये लोग हमारे अच्छे लोग हैं, हमारे साथी हैं ये लोग। ये हमें आगे बढ़ने को स्कूलों में लेके जाएं और कॉर्पोरेट्स में लेके जाएं। जैसे किया है हमने, दो स्कूलों में भी गए थे हम लोग। एक विद्या स्कूल है, उसमें 2 बार गए थे, और एक हॉस्पिटल है, उसमें भी गए थे हम लोग, और इवन कॉर्पोरेट्स में वीडियोकॉन के ऑफिस में गए थे, एक इन्फोटेक के ऑफिस में गए थे हम लोग। तो इस तरह सब लोग धीरे धीरे करके हम कोशिश कर रहे हैं कि इस लाफ्टर को फैलाया जाए, क्योंकि मेरा जो एम है, मेरा शुरू से एम ये रहा है कि स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी, जॉय एंड फ्रेंडशिप। Very good. बहुत बहुत कैन ब्रिंग थोड़ा सा What peace through laughter. हाँ जी, कटारिया जी का मिशन है What peace through laughter, और उनका उन्होंने बोला है when आजकल ये कोरोना में काफी लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, तो उसमें लाफ्टर कैसे मदद कर सकता है? ऐसा है लाकर, ये तो आपको पता ही है कि एक 5 मिनट की जो लाफ्टर है, जो फ्री लाफ्टर जिसको हम कहते हैं, बेली लाफ्टर, अनकंडीशनल लाफ्टर, ये 5 मिनट की लाफ्टर जो है, ये 15 मिनट की जॉगिंग के बराबर है। हम जॉगिंग करते हैं 15 मिनट, तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं आती जितनी हम 5 मिनट लाफ्टर के अंदर आती। भी ऐसे आप अपने आप को कभी आप फील करें कि भाई हम स्ट्रेस डाउन, क्योंकि आजकल जो टीवी के अंदर न्यूज आ रही हैं, वो देख देख के डिप्रेशन बहुत होता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है कि क्या होगा आगे, क्या होगा, हमारा क्या होगा। सो जो होगा देखी जाएगी। प्रेजेंट में अपने आप को खुश रखिए, प्रेजेंट खुश रहेंगे आप तो फ्यूचर भी ठीक रहेगा, कि आपको एनर्जी मिलेगी। प्रेजेंट के अंदर खुश रहने से आपके अंदर चेंज आएगा, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें चेंज आएगा, आपके फ्रेंड्स में चेंज आएगा। मिस्टर प्रमोद कुमार ने अभी इनिशिएटिव लिया है हमें हमें साथ मिलाने का। इस तरह मिलते रहिए और हंसते रहिए और हंसाते रहिए एक दूसरे को, ताकि अपने अंदर हमें पॉजिटिविटी आ जाए। हाँ जी, ये जो सब देख के नेगेटिविटी आती है दिमाग के अंदर। बिल्कुल सागर साहब, हमने डेली आजकल जूम के ऊपर मॉर्निंग लाफ्टर सेशन शुरू किया हुआ है। जो आपको मैसेज मिला हुआ 8:05 पे, तो आपसे रिक्वेस्ट है और आपका इनवाइट करते हैं कि आप भी उसमें आइए और हमें उसमें गाइडेंस दीजिए और लाफ्टर में हमारे साथ दीजिए, तो आपका मोटिवेशन हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। अभी बात हो रही थी कि आपने अपने प्रोफेशन की बात की, तो क्यों आपका इंट्रोडक्शन अपनी थोड़ी सी दुर्गादास जी। हाँ जी। मेरा प्रोफेशन, भाई मेरा तो प्रोफेशन डेंटिस्ट है, मैं प्रोफेशन से डेंटिस्ट हूँ, लेकिन पैशन मेरा लाफ्टर है। तो वेरी नाइस। दोनों छुपाए हुए हैं, आगे मेरा प्रोफेशन है, पीछे मेरा पैशन है। तो इसके अंदर जहाँ थोड़ी बहुत सो हमारे प्रोफेशन में भी लाफ्टर बहुत काम आता है, क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं दर्द लिए हुए, ये दर्द है वो दर्द है, चेहरा उनका ऐसे होता है जैसे बहुत थके हुए से हैं दर्द के मारे, तो एक बार उनको मुस्कुरा के बात कर लेते हैं कि भाई क्या हुआ आपको, कब से है ऐसे, तो उनके दिमाग में थोड़ी सी टेंशन कम हो जाती है। और फिर जब काम करते हुए थोड़े कभी जोक कट कर दिया कभी रहते हैं, उससे काम भी निकल जाता है। जैसे लाफ्टर का भी यूज हो पाता है कभी, लाफ्टर का यूज भी हो पाता है आपके प्रोफेशन में बीच में कभी? हो जाता है कभी कभी, यस कर देते हैं, समटाइम्स हो जाता है। कर हम लोग मतलब ऐसे हमने जुड़े हुए हैं हम लोग, अपने लोग आपस में, वो लोग हम लोग आपस में कांटेक्ट करते रहते हैं एक दूसरे से। वेरी नाइस। तो हमारे ये हमें फायदा कुछ थोड़ा मेरे प्रोफेशन में भी मुझे हुआ कि लोग बाग एक के डॉक्टर जो हमसे बात कर रहा है उसके चेहरे पे शिकन नहीं है। अगर हम भी सीरियस होकर बैठ जाए
पेशेंट भी सीरियस होके आया तो पेशेंट डर जाते हैं कि पता नहीं कहाँ आ गए हम लोग। सो बड़ों को हम छोटों के जोक सुनाते हैं, छोटों को बड़ों के जोक सुनाते हैं। इस तरह थोड़ा सा टाइम 1-2 मिनट एक्स्ट्रा पास करके हम लोग अपना ट्रीटमेंट भी करते रहते हैं और टाइम भी पास होता रहता है उसी के अंदर। तो जैसे वो कहते हैं ना कि दांत निकालते से पहले। जी सर। मैं उससे पूछूंगा, मेरे ये मानना है कि लाफ्टर ट्रांसफॉर्म द, हाँ, but I'm asking, I believe that laughter opens the personality. जितना भी हमारा क्या कहते हैं नेगेटिव एटीट्यूड होता है या हमारा मूड ठीक नहीं रहता, लाफ्टर से हम 24 घंटे एलिवेटेड रहते हैं, खुश रहते हैं और हमारे अंदर खुशी के हार्मोन्स पैदा होते हैं। तो आप ये थोड़ा बताएंगे कि लाफ्टर से और क्या क्या फायदा है, क्यों क्या बेहतर है? देखिए, डिस्कस करनी चाहिए हमें लाफ्टर के ऊपर, बट एक सिंपल चीज मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रेस जिस वक्त होती है तो क्या होता है स्ट्रेस में, कंटिन्यूस स्ट्रेस के अंदर हमारे दिमाग के अंदर जो नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं, ब्लड वेसल्स, हमारी मसल्स हैं, वो श्रिंक कर जाती हैं। जिस वक्त स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, तो इसीलिए आप देखेंगे चेहरे के ऊपर हमारी झुर्रियां पड़ जाती हैं जो टेंस होते हैं, या उनके जबड़े जो भिजे होते हैं, जो टेंस होते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो श्रिंक कर रहा होता है। तो ब्रेन वो जो श्रिंक होता है उसके अंदर ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए, वो हार्ट को सिग्नल भेजते हैं कि आप ब्लड सप्लाई ज्यादा भेजिए, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो ये दो चीजें हो गई, हार्ट, ब्रेन श्रिंक कर रहा है, उसकी आर्टरी श्रिंक कर रही है, हार्ट प्रेशर डाल रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होते ही हमारे जो शरीर के अंदर एक पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट है, जो हमारे खाना अंदर जाते हैं, थूक अंदर जाती है, ये नहीं कि एकदम नीचे चली जाए, वो इंक्रीज हो जाती है एकदम। उसके इंक्रीज होने से जो हमारे शरीर, जो पेट में एसिड बनता है, एसिड बनना शुरू हो जाता है, ज्यादा एसिड ज्यादा बनता है। उसके साथ ही हमारा कभी कभी वो कहते हैं ना, रुकावट के लिए खेद है। तो रुकावट। So, thanks प्रमोद जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। वो लाइट चली जाए ना। सो मैं बता रहा था कि थैंक्स प्रमोद जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। वो लाइट चली जाए ना, बॉडी के अंदर चेंजेस क्या होते हैं जब बंदा स्ट्रेस में होता है, टेंशन में होता है, तो ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। ये उसके बाद किडनी ज्यादा फंक्शन करती है, उसमें यूरिन ज्यादा आता है, क्रियाज काम करना कम कर देता है, उसमें शुगर लेवल बढ़नी शुरू हो जाती है, हमारा लिवर काम करना कम कर देता है, उसके अंदर हमारे जो बॉडी के अंदर फैट चेंजेस हैं वो ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। सारी चेंजेस हैं, ये सारी स्ट्रेस से होती हैं। बिल्कुल। तो लाफ्टर के अंदर जिस हम फ्री हैंड लाफ करते हैं, अनकंडीशनल लाफ, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप हंसो जरूर, आपके अंदर ही चाहिए हंसी। सो जो पहले स्माइल होता है, स्माइल इटसेल्फ इज अ प्रीकर्सर ऑफ लाफ्टर। स्माइल पहले फिर लाफ्टर आता है, ये नहीं कि एकदम लाफ्टर शुरू हो जाए। स्माइल करते हैं आप, दिमाग जो है वो शांत होना शुरू हो जाता है कि स्माइल कर रहे हैं आप, तो जो अंदर के मसल्स हैं वो रिलैक्स होनी शुरू हो जाती है, तो रिलैक्स होती हैं, लानी शुरू हो जाती है। तो बॉडी के अंदर जो हमारे चेंजेस आते हैं वो कुछ एक हार्मोन्स हैं जो बॉडी में पैदा होते हैं, जो अंदर ही अंदर। सबसे बड़ा जो है दैट इज एंडोर्फिन। एंडोर्फिन जो है सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। उसके अंदर हमारे ऑक्सीटोसिन भी आते हैं, उसके अंदर हमारे सीरोटोनिन भी आते हैं, उसके अंदर हमारे एपिनेफ्रिन भी आते हैं। सारे हार्मोन्स जो हैं वो कंट्रोल्ड बाय एंडोर्फिन। ओके। एंडोर्फिन जो है, एंडोर्फिन एक ऐसा एलिमेंट जिसमें हमारे सारे ऑर्गन्स जो हैं सब शांत हो जाते हैं। जो इनएक्टिव ऑर्गन है वो एक्टिव हो जाते हैं, जो ओवर एक्टिव है वो एक्टिव हो जाते हैं। ओवर एक्टिव जैसे हमारा ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर एकदम हाई होता है तो एंडोर्फिन जो है उसको कंट्रोल कर देता है। किडनीज हमारी ज्यादा काम कर रही हैं, यूरिन ज्यादा आ रहा है, ड्यूरिंग टेंशन स्ट्रेस, वो ठीक हो जाता है।
एसिडिटी हमारे पेट के अंदर बननी शुरू हो जाती है स्ट्रेस में, वो कंट्रोल हो जाती ओके है, जो है बॉडी में हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें, एक लाफ्टर, जस्ट 5 मिनट्स ऑफ लाफ्टर, जितना हम लोग जॉगिंग करते हैं, बाहर जाके सड़कों पर जॉगिंग करते हैं, उसके अंदर हमारे अंदर जितनी भी ऑक्सीजन जानी है या जितने चेंजेस आने हैं, वो जस्ट 5 मिनट्स ऑफ फ्री लाफ्टर, कोई उसके अंदर हमें नहीं होनी चाहिए। वेरी नाइस टू नो, वेरी गुड टू नो कि मतलब 5 मिनट लाफ्टर के अंदर ही इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। मुझे भी रियली इट इज इंफॉर्मेशन टू मी कि ये जॉगिंग का और एक्सरसाइज का रिप्लेस कर रहा है। दिस इज एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया जानकारी आपसे मिली। इसमें के फायदे हैं और लाभ इज ए फ्री मेडिसिन आल्सो। अगर हम इसका ये सोशल मीडिया या मीडिया वालों का हेल्प लेकर हम क्यों ना रेगुलर कुछ सेमिनार्स करवाएं, तो डॉक्टर की इम्पोर्टेंस का पता चले, क्योंकि हमारे साथ यंगस्टर और स्कूल के बच्चे ड्यू टू मैनी रीजंस जुड़ नहीं पा रहे, और जितनी भी चीजें हैं सारी पेड है। लाफ्टर ही एक ऐसा है जो सिंपलर है, इजियर है, मोस्ट प्रोडक्टिव थेरेपी है। तो मेरा एक सजेशन था ताकि हम लोगों को अवेयरनेस करवा सकें कि इट इज ए वेरी सिंपल इजियर थेरेपी अवेलेबल विद अस। तो सर सेकंडली मेरा एक क्वेश्चन और भी है जी, कि मैंने 2018 में तक मैं बहुत एक्टिव था, यंग तो मैं आज भी हूँ। बिल्कुल During that period, I realized that when our lifestyle is not good, it affects our physical health also. So, do you agree with me? Until and unless we have our physical health okay, we cannot be happy. What is your opinion on this? ऐसा है कि दुर्गादास जी के लाइफस्टाइल तभी चेंज होगा जब आप अपने आप को चेंज, जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा। तो हम चेंज कैसे कर सकते हैं कि एक सेल्फ लाफ अपने अंदर, हम अपने अंदर ही हंसी पैदा करें। आप समझे? क्योंकि अगर वो सुस्त होकर बैठे रहेंगे, हाय मेरे से कुछ नहीं हो रहा, हाय मेरे से काम नहीं हो रहा, हाय मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो ज्यादा स्ट्रेस पैदा होती है, ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होते हैं और ज्यादा डिप्रेशन होता है। आजकल जो स्ट्रेस लेवल है, उससे जो मेन बीमारियां जो बढ़ रही हैं, जो मेन बीमारियां आजकल 3 या 4 बढ़ रही हैं, सबसे पहली चीज है डायबिटीज। डायबिटीज स्ट्रेस रिलेटेड हो गई है। दूसरा आर्थराइटिस, हमारी जॉइंट पेन्स। तीसरा हमारे अंदर जो अपना ब्रोंक, छोटे बच्चों को क्या 5 किलो का बैग उठा के ले जाना है स्कूल, फिर ये स्कूल से आते ही फिर अपना ट्यूशन पढ़ो, ये करो वो करो। तो छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रही है, छोटे छोटे बच्चों की आंखें वीक हो रही हैं, यंग एज के अंदर आप देख रहे हैं हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यंग एज के अंदर आर्थराइटिस हो रही है। ये सब चीजें जो है स्ट्रेस रिलेटेड हैं। वो स्ट्रेस रिलेटेड तभी खत्म हो सकते हैं जब आप अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करें। ठीक है, हमारे पास आई थिंक वर्ल्ड के अंदर 70 to 80% जो बीमारियां हैं वो साइकोलॉजिकल है, स्ट्रेस रिलेटेड है। पर लाइफस्टाइल का भी सर बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंडिया में यंगस्टर जो है या हमारे स्कूल के बच्चे हैं, वो ट्रेडिशनल फूड की तरफ ना जाकर आजकल वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। मेरा लाइफ से वो मतलब सब चेंज कर दिया। कोरोना ने सब चेंज कर दिया बिल्कुल। नो फास्ट फूड, नो जंक फूड, घर में जो है वही खाओ बैठ के। ये कोरोना एक अवतार की तरह लाइफस्टाइल जो है दोबारा से चेंज हो रहा है सर। हाँ जी, कोरोना को एक अवतार भी मान सकते हैं। आप वैसे
कोई मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को, दिल्ली एनसीआर के लोगों को, कि हमें रूटीन में भी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाना चाहिए? क्योंकि हमारा DD16 लाफ्टर एंड लाइफस्टाइल क्लब का लाफ्टर के साथ जो मैंने लाइफस्टाइल ऐड किया, उसका ये है कि यंगस्टर्स हमारे बीच में ज्यादा नहीं जुड़ते हैं। यंगस्टर्स को चाहिए ज्यादा जुड़ना। सबसे बड़ी बात यह है, यंगस्टर्स के पास टाइम नहीं है। आप देखिए, यंगस्टर्स आजकल पैसा कमाने के चक्कर में सुबह से लेकर कभी कभी रात में 12-12, 13-13 घंटे की ड्यूटी देते हैं वो लोग। लेकिन जो घर में रह जाते हैं सीनियर सिटीजन्स, मेन चीज तो उनकी प्रॉब्लम है। यंगस्टर्स तो अपना काम में टाइम गुजारा कर लेते हैं, सुबह निकल गए, शाम को निकल गए। लेकिन जो घर के अंदर सीनियर सिटीजन्स रह जाते हैं, जो अकेले रह जाते हैं बिल्कुल, जिनके दिमाग के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस रहती है, ये लाफ्टर उनके लिए ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए कि जो जो सीनियर सिटीजन्स की एज बढ़ती है, त्यों त्यों उनके अंदर इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम होती है तो 10 तरह की बीमारियां आ जाती हैं। तो लाफ्टर जो है, इसका एक फायदा ये भी है कि इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी होते हैं, IBG होते हैं, IBM होते हैं। ये दो अपना इम्यूनिटी इंक्रीजिंग हार्मोन्स होते हैं, जो बैक्टीरिया से लड़ते हैं, वायरस से लड़ते हैं, और बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा करते हैं। सो अगर हम सीनियर सिटीजन्स तक भी पहुंच सकें, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। यंगस्टर्स के पहुंचने का तरीका जो है, या तो हम उनके स्कूल्स में जाएं, उनके कॉलेजेस में जाएं, उनके ऑफिस में जाएं, कॉर्पोरेट ऑफिस में जाएं, जहां सारा दिन काम होता है। उस जगह पे तो हमारे जो मीडिया वाले हैं वही हमें ज्यादा फायदा कर सकते हैं ना, कि हमें वहां लेके जाएं। जैसे आपको याद होगा दुर्गा दास जी, हम लोग गए थे NDTV के ऑफिस में नोएडा में। आई थिंक आप नहीं थे शायद। तो क्या वाली कुछ कर सकते हैं, हमें हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें आई थिंक प्रमोद कुमार जी थोड़ा सा, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अरे हमें आपका आशीर्वाद चाहिए और गाइडेंस चाहिए। कोशिश पूरी है, हम मिले हैं दुर्गा दास जी के साथ अभी, तो कोशिश है आपके सहयोग से कुछ ना कुछ इसमें हम यंग्स को जोड़ने की, और लाफ्टर को और ज्यादा दिल्ली में, देश में फैलाने की हमारी कोशिश रहेगी। तो अब बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आज बात करके, बहुत जानकारी मिली। इसको बहुत खुशी है। दुर्गा दास जी कहाँ चले गए? फाउंडर है दिल्ली के बाद। दुर्गा दास जी कहाँ चले गए? निकल गए लगता है। anyway, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे थैंक यू प्रमोद। थैंक यू।